We are now again welcoming Professor C.P.S. Chauhan sir, as we have listened to him yesterday also in our session 3 on the topic structure of higher education in India and introduction. Now we are going to listen him today in our session 5 of second day of this FDP program. The topic is restructuring and strengthening of higher education as envisaged in NEP 2020. देखिए आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जैसे रिस्ट्रक्चरिंग NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो हायर एजुकेशन के प्रोविजन है उनकी वजह से हायर एजुकेशन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए क्या क्या प्रपोजल्स हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आफ्टर इंडिपेंडेंस ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। It was announced by the government nearly 30 months ago, at the end of July 2020. And the first national policy was announced by the government of India, for free India in 1968. 1968 में फ्री इंडिया की पहली नेशनल पॉलिसी अनाउंस की गई थी, एंड इट वाज इन फैक्ट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी एजुकेशन कमीशन which was set up by the government in 1964 and which submitted its report in 1966. And Kothari Education Commission report is one of the best documents on Indian education system. I hope most of you who have read it, and those who have not can download it from the Ministry of Education website. It is there, it's available. So it's a very good document in fact, and all other documents published later on. Later on, whatever documents were published by the government have borrowed ideas from Kothari Education Commission. So first education policy which was launched by the government in 1968 was mostly based on the recommendations of Education Commission of 1964-66. And then it was partially implemented, and then the government was changed in 1977 with the Janata Party government taking over the reign of the country. इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था और 1977 में दूसरी सरकार आ गई, जनता पार्टी गवर्नमेंट आ गई, and that government again announced another national education policy in 1979. एक दूसरी पॉलिसी, देखिए 68 पॉलिसी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, इस बीच में सरकार चेंज हो गई, दूसरी पार्टी की सरकार आ गई केंद्र में, उन्होंने 1979 में फिर एक दूसरी पॉलिसी लेकर आए, and it was thrown in the public domain for discussion, and it was not placed before the parliament, for approval, and before it could be placed before the parliament for final approval after discussion, that government was also gone. यानी 2-3 साल में, 2.5 साल में वो सरकार चली गई, और जो 1979 पॉलिसी थी उसको पार्लियामेंट में भी पेश नहीं किया गया, मतलब इट रिमेन्ड ओनली एट द ड्राफ्ट लेवल, ड्राफ्ट ही बना, पब्लिक में डिस्कशन चला, लेकिन उसको पार्लियामेंट ने कभी पास नहीं किया, एंड देयरफॉर इट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड, इसलिए उसको कभी इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया। एंड अगेन new government came, Congress government came again in 1985, and they launched another education policy in 1986. फिर जब दूसरी गवर्नमेंट आई, तो फिर नई पॉलिसी 1987 आई. It was in fact the third education policy of India, of which the middle one was not implemented. Okay?
Then this policy of 1986 was revised in 1992 by the same government. इसको दोबारा रिवाइज किया गया और now after a long gap of 34 years, fourth education policy was launched by this government 2.5 years back, 1920. So this is in fact fourth education policy, and one of which would never be implemented. I find this policy somewhat different from earlier policies. I believe that earlier policies were meant for strengthening the existing system of education. यानी जो सिस्टम पहले से था उसी को मजबूत करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए वो पॉलिसीज थी 1968 की, 1986 की और बीच में जो नई इंप्लीमेंट हुई वो भी. All the three education policies meant for strengthening and consolidating the existing system of education. But as I feel this is for a change. This policy NEP 2020 is for a drastic change in the system of education in most of its aspects. ये जो पॉलिसी है ये परिवर्तन के लिए है, शिक्षा में कुछ ड्रास्टिक चेंज लाने के लिए इसमें प्रपोजल है. ये मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूँ कि ऐसा है, इसको चेंज के लिए. There are a few ideas which run through the contents of this policy, and this policy is based on those ideas, and these ideas in fact describe the basic vision of this policy. One is that our education system, especially higher, should be transformed in such a way that it becomes internationally comparable. एक तो ये आइडिया है. गवर्नमेंट ने ये सोचा कि किसी तरह से इसको इस तरह रिफॉर्म किया जाए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इंटरनेशनली कंपेरेबल हो, जिसको में ये माना जाता है कि इंटरनेशनली कंपेरेबल नहीं है. अगर होता तो हमारे यहाँ के लोग बाहर एजुकेशन लेने के लिए नहीं जाते. Second है, it is believed that although our system is large, but still it is short in the sense that it is not catering to the requirements of all those who deserve and desire. एक ये प्रॉब्लम है. बहुत बड़ा सिस्टम है. कल हमने बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में है, फिर भी ये छोटा है because our GER is only 27 against 37 to 40% of the world average. दुनिया का जो एवरेज है इस वक्त करीब 40% GER का है. हम लोग इस सेंस में बहुत पीछे हैं. यानी जो भी रेलेवेंट एज ग्रुप हमारा है, the young men aged 18 to 23, from that population only 27% study in higher education and the other 73% remain out of its ambit. ये है बेसिक बात. 73% लोग यंग मेन जिन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए वो हमारे सिस्टम से बाहर है, क्योंकि हमारे पास उनके लिए फैसिलिटीज नहीं है. We do not have sufficient number of institutions. We do not have sufficient infrastructure to serve them. तो ये एक प्रॉब्लम है. तो दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ये सोच रही है now we should expand the system. This is the second idea. अब सिस्टम को हम expand करें so that it becomes accessible to all those or most of those who desire it and those who deserve. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें अपने सिस्टम को एक्सपेंड करना चाहिए. ये दूसरा आइडिया इस पॉलिसी का है. Third is, it is believed that as we have expanded our system,
over years without proportionate improvement in the resources. It is said that the quality of our education has gone down, and a large number of our graduates who come out of universities do not find job because most of them are unemployed. ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा नंबर है जो आता है जो जिनके पास skills नहीं है. They can only read and write and they have developed no working skills. काम करने की कोई skill उनके पास नहीं होती, and that is why they do not find jobs in the market. इसलिए हमको लगता है कि our system, whatever it is not relevant to our needs, not relevant to the needs of the market, not relevant to the needs of the economy. जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है उसके लिए ये रेलिवेंट नहीं है, और इसलिए इसमें हमें कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारे जो ग्रेजुएट आते हैं उनको जॉब मिले, उनकी सेवाएं इकोनॉमी में जाएं. ये दिस इज द थर्ड आइडिया. एंड देन गवर्नमेंट आल्सो फील्स that even in general education at higher level, we should introduce some vocational elements so that the graduate coming out of a university or a college is equipped with some kind of working skills. ये कहा है कि कुछ काम करना भी आना चाहिए ग्रेजुएट पर. जब वो सर्टिफिकेट लेके आता है उसमें ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये कुछ काम कर सकता है. इसलिए जनरल एजुकेशन में भी कुछ वोकेशन हो, कुछ स्किल्स हो जो सिखाई जाए. देखिए जब प्रोफेशनल एजुकेशन है वो तो स्किल बेस्ड होता ही, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, MBA, एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस, ये जो है ये तो वोकेशनल है. लेकिन जो जनरल एजुकेशन है BA, BSc, BCom, उसमें स्किल्स नहीं है, एंड consequently those who come out of general education degrees are not accepted in the market economy. वो एक्सेप्टेड नहीं, इसलिए कुछ वोकेशनलाइजेशन भी होना चाहिए. ये एक और गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसने इस पॉलिसी में फॉर्म बनाया. देयर इज सम प्रॉब्लम विद द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन. जो गवर्नेंस है उसमें उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए. कुछ नया सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिससे कि सो दैट वी कैन गवर्न आवर सिस्टम बेटर, और अच्छी तरह हम अपने सिस्टम को गवर्न कर सकें. इसके लिए कुछ नया सिस्टम लाना चाहिए या कुछ इस सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने के लिए. एंड देन रिसर्च इज आवर वीकेस्ट कंपोनेंट. सबसे कमजोर कंपोनेंट हमारे हायर एजुकेशन में वो रिसर्च है. इसको मजबूत करें, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं. इसके लिए भी कुछ नए प्रपोजल्स आने चाहिए. And then at the same time, we should develop our international dimension. See, a large number of students are going abroad for higher education from our country. Next, only to China. China तो सबसे ज़्यादा भेजता है, and we are second in number. Who sent young men outside India for higher education. तो गवर्नमेंट अब ये सोचती है कि हम भी अपना इंटरनेशनल डायमेंशन को उसको मजबूत करें, जिससे कि हमारे स्टूडेंट बाहर जाए तो बाहर के भी हमारे यहाँ आए. हमारे पास भी कुछ है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम सेल कर सकें, दूसरों को दे सकें. ये कुछ आइडियाज हैं जिसके बेसिस पर एजुकेशन पॉलिसी को तैयार किया गया है. नाउ अब हम आते हैं असली. In fact, the new NPE 2020 proposes to change the basic definition of a university. यूनिवर्सिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है हमारे यहाँ जिसको हम लागू करते हैं, उसी को चेंज करने के बाद इस पॉइंट को जरा ठीक कर समझिए. अब तक यूनिवर्सिटी बहुत तरह की होती है हमारे यहाँ, लेकिन अब क्या है कि उसको रीडिफाइन, यानी पॉलिसी proposes to redefine the concept of a university. So, a university is a multi-disciplinary higher education institution. देखिए ये this is the new definition of a university according to NEP 2020.
इसके हिसाब से जो डेफिनेशन है, यूनिवर्सिटी इज अ मल्टी-डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन offering undergraduate, postgraduate and research programs with community engagement. ये this is the definition of a university. अब यानी गवर्नमेंट ये कह रही है कि सारे इंस्टीट्यूशन, सभी यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी हो। इसका मतलब ये है हर सब्जेक्ट हर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाए। एक बात तो ये दूसरा है, हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च फैसिलिटीज हो और कम्युनिटी एंगेजमेंट भी हो। यानी देयर शुड बी सम आउटरीच प्रोग्राम्स आल्सो सो दैट आवर स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट विद द कम्युनिटी अराउंड फॉर देयर बेनिफिट। तो ये चीजें यूनिवर्सिटी की नई डेवलपमेंट इन्हें देने की कोशिश की। तो आइडिया ये है कि सभी यूनिवर्सिटियों में अब सब कुछ पढ़ाया जाना चाहिए, इसीलिए उनको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी अब भी हमारे यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी है, लेकिन उनमें कुछ प्रॉब्लम है, वो डिस्कस करेंगे। तो कंसिक्वेंटली अब ये जो आइडिया है ये सिंगल आइडिया होगा यूनिवर्सिटी का। इसका रिजल्ट ये है, प्रेजेंट नोमेनक्लेचर है लीड टू बी यूनिवर्सिटी, affiliating universities, unitary universities, teaching university, non-teaching practice, है ना? and technical, medical, तरह-तरह की universities हैं। ये कह रहे कि नहीं, these will be covered or these will be merged into a single idea of a multidisciplinary university. सबको एक उसमें लाया जाए, सबको एक जैसा बनाया जाए। और ये जो अलग-अलग नोमेनक्लेचर हैं, ये अब नहीं रहेंगे। कोई डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नहीं होगी, कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं होगी, कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं होगी। सब में इंजीनियरिंग फैकल्टी भी होगी, सब में मेडिकल फैकल्टी भी होगी, सब यूनिवर्सिटी में आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स सब हो। ये है मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट। There are some universities which are single stream universities, and similarly there are some colleges which are single stream colleges जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। उनसे कहा जाएगा कि आप 15 साल में convert yourself into multi-disciplinary institution। 15 साल के अंदर, that means by 2035, 2035 तक अपने आप को कन्वर्ट करिए, मल्टी-डिसिप्लिनरी बनाइए, ये उनसे कहा जाएगा। और some of the good colleges, कुछ अच्छे कॉलेजेस भी हैं, those will be converted into autonomous colleges for the time being। अभी कुछ समय के लिए उनको autonomous status दे दिया जाएगा और कुछ को यूनिवर्सिटीज से अटैच कर दिया जाएगा, जिसको हम constituent colleges कहते हैं। तो constituent कॉलेज बना दिए जाएंगे, कुछ autonomous कॉलेज बना दिए जाएंगे और कुछ से कहा जाएगा आप अपने आप को improve करिए और multidisciplinary institution बनने की कोशिश करिए। And if some of the despite everything don't try and don't improve, there is a provision that such colleges will be phased out or merged with the other larger colleges। ये कहा जाएगा कि जो इतने बड़ी कोशिश नहीं करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, उनको या तो बंद कर दिया जाएगा या दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो किस तरह के सर्वे प्रपोजल आ रहे हैं, and this will be done on the basis of continuous assessment by रेगुलेटरी बॉडीज। यानी ये जो इंप्रूवमेंट होगा इसको मॉनिटर किया जाएगा हर कॉलेज का कि कुछ कर रहा है कि नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट किया कि नहीं। क्योंकि इसमें क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, इसलिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ मैन एंड मटेरियल, यानी स्टाफ भी बहुत चाहिए, मटेरियल भी बहुत चाहिए, बिल्डिंग्स भी और चाहिए, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये सब क्रिएट करने की वो कोशिश करें। तो ये प्रोफेशनल टेक्निकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे IITs, IIMs, ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, इनको 2030 तक ही मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन होना है। दिस इज रिटन इन द पॉलिसी, ये लिखा हुआ। तो ये सिंगल स्ट्रीम बड़े इंस्टीट्यूशन है,
इनको भी मल्टीडिसिप्लिन होना है और इसके इनके लिए टाइम दिया गया है 2030 का। इस तरह से ये मल्टीडिसिप्लिन कल्चर फिर वो आएगा। तो आपने देखा कि इसमें कोशिश ये है कि पूरा सिस्टम बदले, सिस्टम को चेंज किया गया। यूनिवर्सिटी का जो नया कॉन्सेप्ट है which has been given in this, it should be accepted by all। सब इसको एक्सेप्ट करें और इसमें अपने आप को कन्वर्ट करें। तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? Creation of a large and multidisciplinary university, once in each district, teaching local language। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रपोजल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा होने के बाद में इंस्टीट्यूशंस अभी काफी नहीं है। तो ये है कि लार्ज एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। देखिए दो वर्ड, लार्ज, लार्ज मतलब छोटे नहीं हो, ऐसे नहीं हो मतलब 200-300 स्टूडेंट, बड़े इंस्टीट्यूशन हो और मल्टीडिसिप्लिनरी हो। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक हो एंड that should provide education in local language। लोकल लैंग्वेज में वो एजुकेशन दे, ये बात इम्पोर्टेंट है कि इस पर बहुत इन्वेस्टेड है थ्रू आउट द पॉलिसी। पूरी पॉलिसी में इस पर इन्वेस्टेड बहुत है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी है। एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, a person thinks and understands better in his own language than in any other language। जो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन ये बताती है अपनी लैंग्वेज में हम अच्छी तरह सोच पाते हैं और अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाते हैं, अच्छी तरह समझ पाते हैं। ये अपनी लैंग्वेज में बहुत है। तो और यू कैन सी अराउंड द वर्ल्ड, आप दुनिया में देख ही सकते हो कि जिन कंट्रीज में हायर एजुकेशन अपनी लैंग्वेज में दी जाती है वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। You can look at USA, Australia, UK, Germany, and even China, Russia। ये सब अपनी लैंग्वेज में देते हैं। जिनकी इंग्लिश है वो इंग्लिश में देते हैं, जैसे जर्मनी जर्मन में हायर एजुकेशन देते हैं, रशिया अपनी लैंग्वेज में देता है, चाइना अपनी लैंग्वेज में, मैंडारिन उनकी लैंग्वेज है उसमें देता है। और वो सारे कंट्रीज डेवलप्ड हैं। And all those countries who provide for higher education in other languages, other than their own, they are underdeveloped। तो सारे के सारे underdeveloped। ये अपने आप ये बताता है कि अपनी लैंग्वेज में अगर हायर एजुकेशन दी जाएगी तो बेहतर समझेगा। देखिए दोनों चीजों बहुत फर्क है, पढ़ लेने में समझ लेने में बहुत फर्क है। इसलिए इसका बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। अभी ये आइडिया है कि दो तीन चीजें, बड़े इंस्टीट्यूशन होंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होगा और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी। ये चार बातें इस प्रपोजल में कही गई है। देन इसके बाद जो यूनिवर्सिटीज होगी, एक बात तो ये होगी कि मल्टीडिसिप्लिनरी होगी, इट्स ओके। इनमें भी दो कैटेगरीज होंगी। मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज विल आल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह। एक को कहेंगे हम टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, TIUs। टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज means more emphasis will be on teaching than on research। Research will also be undertaken by the faculty and students। रिसर्च भी होगी, वहाँ ऐसा नहीं, लेकिन रिसर्च पर emphasis उतना नहीं होगा जितना टीचिंग पर होगा। टीचिंग पर ज्यादा emphasis। Then the other category would be research intensive university, RIUs। research intensive universities जिनमें रिसर्च पे ज्यादा emphasis होगा और टीचिंग पे उतना नहीं होगा। देखिए दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। टीचिंग और रिसर्च तो हर यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, हर यूनिवर्सिटी में टीचिंग भी होगी, रिसर्च भी। There will be only a difference of emphasis, किस पे कितना जोर दिया जाना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जिसमें टीचिंग पर ज्यादा emphasis होगा, रिसर्च पे उतना नहीं होगा, और दूसरी कैटेगरी वो होगी जिसमें रिसर्च पर ज्यादा emphasis होगा और टीचिंग पर उतना नहीं होगा।
and accordingly the funds and the resources will be provided to the institution. तो दो तरह की institutions होंगे, and this categorization will be on the basis of assessment by the regulatory bodies. जो regulatory body होगी वो assess करेंगी और तब ये बताएंगी, हर यूनिवर्सिटी को देंगी कि आपको RIU होना है या PIU होना है। ये चीज ये प्रोसेस अभी शुरू हो गए थे, अभी ये सब चीजें शुरू होगी, बहुत ज्यादा भी आगे इसमें आगे हम नहीं बढ़ेंगे। So all higher education institutions are to develop into multidisciplinary institutions by 2030। सारे इंस्टीट्यूशन को ये कहा गया है कि 2030 तक, लेकिन इस पॉलिसी में एक खास बात और है, दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर ए डेडलाइन फॉर एवरी प्रपोजल टू बी इम्प्लीमेंटेड। हर एक चीज के लिए डेडलाइन दी है कि ये प्रपोजल है तो ये इतने दिन में पूरा हो जाएगा, ये प्रपोजल इतने दिन में पूरा हो जाएगा, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। होता क्या है देखना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने कहा कि ये 2030 तक सारे इंस्टीट्यूशन को मल्टीडिसिप्लिनरी हो जाना चाहिए, लार्ज हो जाना चाहिए। यानी लार्ज का मतलब एटलीस्ट एनरोलमेंट ऑफ 3000 उसमें लिखा है पॉलिसी, कम से कम 3000 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसको 3000 और मोर उससे ऊपर जितना हो, लेकिन कम से कम 3000 को। तो जो बहुत सारे नॉन वायबल कॉलेज की हम कल बात कर रहे थे, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनमें 100 से कम स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें 500 ही हैं, तो उनमें मुश्किल होगी। उनका देखना है कि क्या करना है, कैसे करना है, उनको मर्ज करना होगा या क्या करना होगा, लेट्स सी, बाद में सब आएगा। and this time frame for this is 2040, 2040 तक टाइम दिया हुआ है 20 साल का, कि 20 साल में दोनों काम हो जाने चाहिए। 2030 तक सारे इंस्टीट्यूशन मल्टीडिसिप्लिनरी हो जाए और 2040 तक लार्ज हो जाए, यानी अपने आप को एक्सपेंड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, स्ट्रेंथ बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडमिट करने की फैसिलिटीज क्रिएट करें। तो ये है इस तरह का। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो हम उसकी बात कर रहे थे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम कर रहे थे वो इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन होगा। सारी यूनिवर्सिटीज मल्टीडिसिप्लिनरी होगी, बड़ी होगी साइज में, उनको दो कैटेगरी में बांटा जाएगा, एक में टीचिंग बेस्ड बेसिस होगा, दूसरी में रिसर्च बेस्ड बेसिस। हर डिस्ट्रिक्ट में एक होगी, अगर नहीं है तो खोली जाएगी, रीजनल लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन होगी। These are some of the things which data है। अब दूसरी चीज आती है एक्सपेंशन की बात हम करते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड द एवरेज GER is 40, nearly 40% GER है, means 40% of the relevant age group study in the university on global level, पूरे countries में एवरेज इतना। और if you look at the developed countries only, their average GER is 55। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी एवरेज GER 55% लोग यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाते हैं। एंड इन सम कंट्रीज GER is quite high, कुछ में बहुत ज्यादा है, जैसे साउथ कोरिया 94%, वेरी हाई नंबर। साउथ कोरिया में 94% जो यंग मैन हैं जो यूनिवर्सिटी में जाने के एज के हैं, they are enrolled in the university, 94%। USA में 88 है, very high, साउथ कोरिया 88% लोग USA हैं, and 88% of the relevant age group study in the university system in United States। ऑस्ट्रेलिया में 73% है, UK is 60 है, even in China 51, चीन में भी 51 है, जो कि हमसे बहुत बाद में जितने हायर एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करना शुरू किया तो उसमें भी काफी सारा 51 है, बट वी आर at 27।
and the government proposes that within the next 15 years, by 2035, we must raise our GER to 50%. इतना हमें एक्सपेंशन करना है कि 2035 तक हमारा GER 35% तक हो जाए। ये गवर्नमेंट चाहती है और इसके बारे में internationally it is accepted that for a rapid socio-economic development of a society or a country, minimum 25% GER is essential in higher education system. यानी ये माना जाता है कि किसी भी सोसाइटी, किसी भी समाज के या देश के तेजी से विकास के लिए हायर एजुकेशन में कम से कम 25% GER होना चाहिए मिनिमम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 25% GER जब किसी कंट्री का हो जाएगा हायर एजुकेशन में, इसका मतलब ये होगा कि उसके बाद वे सोसाइटी या वो देश तेजी से तरक्की करे। और वी आर एट द मार्जिन एट इस वक्त हम लोग बिल्कुल मार्जिन पर है। 27 है हमारा, 25 मिनिमम चाहिए, 27 है। तो अब हम ये मान तो सकते ही है कि अब इंडिया will progress rapidly because we have achieved the minimum GER of 25. वो हमें मिल गया है। तो अब फ्यूचर में हमारा जो तरक्की होगी वो तेजी से 2030 होगा। ये होगा तो ये होगा कैसे भाई? GER आपको बढ़ाना है और 2035 तक आपको 50% तक लाना है, तो there have to be some strategy। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना गवर्नमेंट। तो पॉलिसी proposes two different approaches. One, enhance intake in the existing system। एक तो ये था कि जो हमारा सिस्टम है उसी में सीटें बढ़ाइए, उसमें इनटेक बढ़ाइए थोड़ा सा, जितना भी फिजिबल हो। एक तो ये चीज है। दूसरा है establish more institutions, और institutions खोलिए in order to ensure that each district has at least one multidisciplinary university। कम से कम एक हो, ये हम पहले बात कर चुके हैं। इतना उसको एक्सपेंड करिए कि हर जिले में कम से कम एक मल्टीडिसिप्लिनरी हो। ये दो अप्रोचेस हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। तीसरी बात एक और कही, we should promote open and distant learning system on a large scale। देखिए ना भाई, open and distant learning, I know, which is very useful for working people or those living in the remote areas and for the men, housewives, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम। और इसको आप एक्सपेंड करें और स्टार्ट मोर ओपन यूनिवर्सिटीज। बिकॉज कल हम बात कर रहे थे, अभी तक हमारे पास 16 ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, एक इग्नो है सेंट्रल टी, 14 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी स्टेट में है, तो 16 ही है। तो हम कम से कम हर स्टेट में एक हो, और हम इस नंबर को डबल कर सकते हैं और इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। तो ये इन्होंने कहा। दूसरा कहा कि multidisciplinary universities should also have provision for open and distant learning। यानी वो भी सेंटर खोल लें, जो हमारे रेगुलर इंस्टीट्यूशन है उनमें भी ओपन इंस्टीट्यूशन का प्रोविजन हो और ऑनलाइन एजुकेशन का भी प्रोविजन हो। तो ये सब चीजें अब हमको करनी चाहिए। अभी की पोजीशन ये है, हमारा जितना टोटल एनरोलमेंट है करीब उसका 11% ही ODL सिस्टम में है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में 11% एनरोलमेंट इज देयर आउट ऑफ द टोटल एनरोलमेंट। पूरा हमारा है उसका कल हमने बताया था पूरा है 41 मिलियन का सिर्फ 11% ही उसमें है, और सबसे ज्यादा इग्नो में। हमने ये भी कहा था कि इग्नो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इस बार एनरोलमेंट इस वजह से।
इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं पूरी दुनिया में नहीं। तो ये सिस्टम जो है ओडीएल सिस्टम सारे इंस्टीट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए और तब उसमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये बहुत आसान नहीं है बिकॉज इट रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नो, इक्विपमेंट, मल्टीमीडिया। क्योंकि जब आप डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हो, ऑनलाइन की बात करते हो, तो यू हैव टू गो फॉर यू नो मल्टीमीडिया इक्विपमेंट। सारे इंस्टीट्यूशन को आपको प्रोवाइड करना है और सिर्फ उसी से काम नहीं चल जाएगा। यूनिवर्सिटीज में सब कुछ हो वो काफी नहीं है। स्टूडेंट के पास भी तो हो, एटलीस्ट स्टूडेंट शुड हैव स्मार्टफोन, तो कम से कम उसके पास हो तभी तो वो कर पाए। तो ये काफी मुश्किल है वैसे तो, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, लेकिन ये मुश्किल लग रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशन में। अब मुश्किल क्या, लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, फंड्स बहुत चाहिए, मनी बहुत चाहिए, रिसोर्सेज बहुत चाहिए। एंड लेट्स होप दैट these proposal materialize in the course of time. इस तरह से ये आगे बढ़। इसके बाद क्वालिटी की बात हम करते हैं। एजुकेशन इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री। हम कहते नहीं, पढ़ाते नहीं करते, एजुकेशन एक इंडस्ट्री है। एंड इन एनी इंडस्ट्री if you increase production without proportionate improvement in the resources or input, अगर इनपुट आप न बढ़ाएं और सिर्फ आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करें तो नेचुरली द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल गो डाउन। प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी वो कम हो जाएगी। मैं समझता हूँ ये बात आप समझ लें। कोई भी फैक्ट्री मालिक करेगा, इनपुट तो बढ़ाएगा नहीं, खर्चा तो इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा लाने की कोशिश करें तो उसको क्वालिटी गिरानी पड़ेगी, तो अपने आप क्वालिटी सीख जाए। एंड दैट हैज हैपेंड विद आवर्स। और ओवर द ईयर जो है एक्सपेंशन तो हुआ है हमारे। हम बात कर रहे थे 200% एनरोलमेंट बढ़ गया पिछले 75 साल में, 200% एनरोलमेंट बढ़ा, जबकि यूनिवर्सिटीज 55% नहीं बढ़ी। तो इससे क्या होगा कि वी हैव नाउ you know overcrowded campus, large classes। अब ये कुछ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, इतनी बड़ी क्लासेस है। ये सब चीजें हैं। और उसमें क्या हुआ है कि अच्छा अभी हम एनुअली करीब 95 लाख ग्रेजुएट्स पैदा करते हैं, यानी नियरली 95 लाख ग्रेजुएट्स इन पोस्ट ग्रेड पास आउट ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज एनुअली। हर साल 95 लाख के करीब, 1 करोड़ ही समझो, 5 लाख ही कम है, लगभग 1 करोड़ लोग हमारी यूनिवर्सिटी से हर साल पास हो जाते हैं, अपनी डिग्रियां लेकर चले जाते हैं। और उनमें से कितनों को जॉब मिलता होगा, दिस इज एवरीबॉडी गेस। और करीब 12 साल पहले पुरानी बात है, हमारे एक एजुकेशन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। He said that only 9% of the graduates coming out of our universities are employable। सिर्फ 9% को ही हम जॉब दे सकते हैं, बाकी 91% ऐसे हैं जिनको हम जॉब दे ही नहीं सकते। Now that means there is a problem with the quality. We have to improve the quality of higher education। जैसा कि हम पहले कहते हैं रीडिंग राइटिंग स्किल्स से आगे भी बढ़ना चाहिए, कुछ और भी करना आना चाहिए, ये चीज हमको देखनी पड़ेगी। एंड अच्छा इकोनॉमी तो है क्या कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन हायर एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। इकोनॉमी कहना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है उसका हायर एजुकेशन से कुछ ताल्लुक होना चाहिए। एंड बोथ हेल्प ईच अदर। हायर एजुकेशन को ग्रो करने में मदद करता है और इकोनॉमी हायर एजुकेशन को भी डेवलप करने में मदद करती है, क्योंकि वो डिमांड करती है। इकोनॉमी से पता चलता है कि हमको क्या चाहिए।
हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो मैसेज देती है यूनिवर्सिटीज को कि हमें इस तरह के लोग चाहिए, इस तरह के लोग प्रोड्यूस करिए, इस तरह के वर्कर्स हमको चाहिए, वो प्रोड्यूस करें। ये मैसेज मुझे, बट देयर इज ए मिसमैच, देयर इज ए मिसमैच between what our education system produces and what is required by the industry or the economy. Economy के जो कुछ चाहिए वो हम प्रोड्यूस नहीं करते, और जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो उनको चाहिए नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज there is lack of coordination between them. दोनों में कोई संबंध नहीं है। इसलिए आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री में इंटरफेस होना चाहिए। Whenever you develop a curricula in the university, talk to industrialists and other businessmen and other people जो workforce है, उन लोगों तक आते हैं कि आपको कैसे लोग की जरूरत फ्यूचर में पड़ेगी, वैसे ही लोग हम पैदा करें। तो दिस इज ए प्रॉब्लम। ये चीज हमारे यहाँ है और इसको अब प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ through this policy wants to promote some kind of interaction, regular interaction between industry and the education system, so that what we produce is accepted by the economy. जो हम produce करें वो economy को acceptable हो। आप देख सकते हैं कि 15 साल पढ़ने के बाद 15 ईयर में BA किया, उसकी जॉब नहीं लगती, और 2 महीने का कहीं कोर्स कर ले मार्केट में, उसके बाद जॉब मिल जाती है, टाइप सीख ले फॉर एग्जाम्पल, तो देयर इज सम प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसको हमको ठीक करना चाहिए। जो मार्केट में सिखाया जाता है वो हम यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं सिखा सकते, ये हमको देखना ये करिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारा करिकुलम है उसको भी बदलने की जरूरत है पूरे को। At present we have 3-year undergraduate courses. These will continue for some time. कुछ टाइम के लिए चलेंगे, इनको abruptly बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में उन्हें प्रॉब्लम। So there will be 3 or 4-year undergraduate courses and 4-year integrated courses as proposed by the policy. पॉलिसी जो कह रही है 4 साल में इंटीग्रेटेड कोर्सेज होने चाहिए, तो वो भी हमको करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और एक चीज और इसमें नहीं है, देयर विल बी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए अभी तक क्या होता है, सपोज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट परसुइंग ए कोर्स एट द अंडरग्रेजुएट लेवल leaves his studies after 1 year. 1 साल बाद वो स्टडी छोड़ दे। कोई स्टूडेंट 1 साल तक पढ़े BA, BSc या BCom में, उसके बाद किसी वजह से उसको अपनी स्टडी छोड़नी पड़ जाए, then economy will not accept that 1 year study. उसको 1 साल का कोई मतलब नहीं, उसकी कोई डिग्री नहीं मिलती, और जॉब मार्केट में उसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है 1 साल। Similarly, if somebody leaves the course after 2 years, 2 साल बाद छोड़ जाए, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। That means उसको कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिलेगा, और उसको जॉब मार्केट में भी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्यों कमा दो। जब भी एडवर्टाइजमेंट होगा ना, दिखा रहता है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी 3 साल का पूरा कोर्स कर लेना चाहिए। 2 साल पढ़ाया ग्रेजुएट तो नहीं माना जाए, 1 साल पढ़ाया तो नहीं माना जाए, और इवन फाइनल ईयर करने के बाद एग्जाम नहीं दिया तो भी नहीं माना जाए। लेकिन सरकार कहती है कि ये ठीक नहीं, ये जस्टिस नहीं, ये न्याय नहीं है कि 2 साल कोई पढ़े और किसी मजबूरी में उसको कोर्स छोड़ना पड़ जाए और उसका वो पूरा टाइम बेकार हो जाए, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाए। Now there are provisions for issuing certificates under this policy. अब ये पॉलिसी कहती है कि नहीं, 1 साल भी कोई पढ़ेगा अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, इंटीग्रेटेड डिग्री में भी, and then if he due to some reason leaves the course, he will be given a certificate.
उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी देगी, एंड दैट सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेबल इन द जॉब मार्केट। जॉब मार्केट में वो माना जाएगा, हाँ भाई ये इंटरमीडिएट पर नहीं है, अब ये 1 साल का ग्रेजुएशन ठीक कर चुका है, एंड अकॉर्डिंगली ही कैन बी प्लेस्ड इन द वर्कफोर्स। तो 1 साल वाले को सर्टिफिकेट मिलेगा, जो 2 साल बाद छोड़ देगा। If somebody pursues the course for 2 years and then leaves it, he will get a diploma certificate. ये इसमें प्रोविजन है। एंड देन 3 साल जो करेगा इसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में भी, देखिए 4 ईयर में भी अगर 3 साल कोई करेगा और छोड़ देगा, then he will get a degree, but it will be mentioned that he is not trained in research component. वो लिख दिया जाएगा कि 4था साल इसने नहीं किया जिसमें कि रिसर्च कंपोनेंट होगा, रिसर्च की ट्रेनिंग होगी, रिसर्च का कुछ ओरिएंटेशन होगा, वो उसने नहीं किया, ये लिख दिया। He will get a degree, डिग्री तो मिले, लेकिन रिसर्च कंपोनेंट इसने किया उसको मेंशन नहीं किया। And then after 4 years full degree with the mention of research component, इसने एक इनफैक्ट ये जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसमें जो फाइनल ईयर है वो एक तरह से पूरा का पूरा रिसर्च ओरिएंटेड होगा, उसमें रिसर्च की ट्रेनिंग हो, so that a student can directly join the doctoral program with a PhD। ये इसमें प्रोविजन है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद a candidate has also studied research component in the 4th year, you can go directly for doctoral program, सीधा वो doctoral program मिलेगा। इस तरह से ये है multiple entry exit point, जब चाहे जब छोड़े, जब चाहे आ जाए। multiple entry का क्या मतलब है? मैंने 1 साल छोड़ दे, 2 साल बाद फिर आ जाए तो उसको अलाउ है। आगे बताएंगे कि क्रेडिट कैसे ट्रांसफर होंगे, थोड़ा सा आगे हम अभी बताते हैं। वो चीज आपका है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात। नाउ वी कम टू दी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। पीजी कोर्सेज कैसे करें, अब उसमें न्यूमेरिकल पॉलिसी है। जब 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स with 7 year for research, एक्चुअली जो 3 साल का ग्रेजुएशन करके आएगी, देखिए आप सोचिए, अभी हमने बताया कि 3 साल बाद जो छोड़ देगा उसको डिग्री मिलेगी, लेकिन ये मेंशन किया जाएगा तो रिसर्च ट्रेनिंग, रिसर्च का कंपोनेंट नहीं था। He can also join a postgraduate course of 2 year duration with 2nd year exclusively for research training। ये इस तरह से 3 साल जो करेगा सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसने रिसर्च के बारे में नहीं पढ़ा उसके लिए पीजी कोर्स 2 साल का होगा, और जिसमें 2nd ईयर में उसको रिसर्च की ट्रेनिंग दी जाए। ये 3 साल का पीजी है, जो 3 साल का है। And then similarly 1 year PG course, 1 year integrated course। देखिए ये क्यों है? Suppose somebody has undergone a 4 year postgraduate course, integrated postgraduate course, and does not want to go to the job or to the doctoral program। वो जॉब में भी नहीं जाना इसी वजह से, और वो डॉक्टरल प्रोग्राम पीएचडी में भी नहीं जाना चाहता, then he has a chance to join a 1 year postgraduate course। 1 साल का पीजी कोर्स उसके लिए होगा। तो ये सबकी जरूरत है पूरी करने के लिए ये पॉलिसी कहती है कि ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, क्योंकि पीएचडी तो लिमिटेड बहुत ही है, बहुत ज्यादा लोग उसमें नहीं जा पाते, और 4 ईयर इंटीग्रेशन करने के बाद फौरन किसी की जॉब लग जाए ये भी जरूरी नहीं। Then he has to have some alternative। He can think of going to the PG course of 1 year and then go for a doctoral degree program। इसलिए आप उसको करना पड़ेगा। And then
चीज और है, 5-year integrated postgraduate course for school leavers। ये और नई चीज में आई, पहले नहीं था। तो जो नया स्ट्रक्चर आएगा उसमें ये चीज हो, जो स्कूल से पास हो गए +2 के बाद आएंगे, they can directly join an integrated postgraduate course of 5-year duration। सीधा 5 साल पढ़ेंगे और उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री देनी चाहिए। ये भी इसमें प्रोविजन है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। डायरेक्ट पीएचडी फॉर 4 ईयर डिग्री, मैं बता चुका आपको, 4 ईयर डिग्री कोई करेगा सीधा पीएचडी में भी जा सकता है। सेंट्रल विल बी डिसकंटिन्यूइंग, कोई एमफिल वगैरह नहीं होगी। ये पॉलिसी कहती है एमफिल को खत्म करो। हमने तो अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 90s में 1992-93 में ही एमफिल को खत्म कर दिया, क्योंकि हमें लगता था कि इसका कोई खास फायदा नहीं, और हमने उसको खत्म कर दिया। और हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था उसमें ये चलता था एमफिल पहले, और उसमें एमफिल में भी कभी-कभी कई साल लग जाते थे, तो डिसकंटिन्यू हमने उसको। अब इसमें एक चीज और है, पॉलिसी ये कह रही है कि हम हायर एजुकेशन को एंजॉयबल बनाना चाहते हैं, पैथोलॉजी बेस्ड बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट शुड बी फ्री टू चूज दिस कोर्स ऑफ स्टडी अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। ये कहता है कि फोर्स नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ज़रा समझिए। मान लीजिए पीसीएम ग्रेजुएशन कोर्स है अभी 3 साल का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। कोई ऐसा नहीं कर सकता अभी फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ूंगा लेकिन केमिस्ट्री में नहीं पढ़ूंगा, नहीं, उसको पढ़ना तो है क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाया हुआ नहीं। तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट तो अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट से लिया, उसको मैथमेटिक्स में तो इंटरेस्ट है, फिजिक्स में भी कुछ है, केमिस्ट्री में नहीं है, लेकिन पढ़ रहा उसको है क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है। इस तरह से कॉम्बिनेशंस बना दिए, वो कह रहे अब ये आगे नहीं होंगे। मोreover, we have divided all the subject areas in terms of faculties। हमने फैकल्टीज में को डिवाइड कर दिया, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज। इसमें क्या हुआ, स्टूडेंट स्टडीइंग इन ए गिवन फैकल्टी can choose subjects from that faculty only। That restricts his choice। choice को restrict किया जाए। देखिए जिस फैकल्टी में वो है, जैसे साइंस फैकल्टी में भी पढ़ रहा तो साइंस के सब्जेक्ट लेगा, आर्ट्स फैकल्टी में है तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेगा, एंड सो ऑन। 3 सब्जेक्ट होंगे वो सीख लेगा। So that's the problem। That means कहीं ना कहीं हमने स्टूडेंट की चॉइस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ये कह रहे कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। पॉलिसी सेज नाउ स्टूडेंट विल बी फ्री टू मेक हिज चॉइस अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट से, एबिलिटी से फ्रीली वो चॉइस कर सकेगा। एंड ऑल सब्जेक्ट्स विल बी इक्वल, सारे सब्जेक्ट इक्वल स्टेटस के होंगे, उनको फैकल्टीज में डिवाइड नहीं किया जाएगा। कोई सब्जेक्ट, कोई स्टूडेंट कोई से भी सब्जेक्ट ले सकता है पढ़ने के लिए, अपने इंटरेस्ट को देखेगा, अपनी एबिलिटी को देखेगा। ये है। और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये आपने सुना होगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होगा, और उसमें प्रोविजन ये होगा, वो बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है। देयर इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज अवेलेबल ऑन द यूजीसी वेबसाइट। इसी पर एक डॉक्यूमेंट है, उसको आप पढ़ सकते हो, आसान है। एंड फॉर ए अंडर ग्रेजुएट पास डिग्री, BA, BSc, BCom, whatever, the student must earn 120 credits in all the 6 semesters। जितने भी सेमेस्टर्स हैं उनमें सब मिला के उसको 120 क्रेडिट अर्न करने होंगे। सिमिलरली फॉर
BA ऑनर्स के लिए 140 क्रेडिट्स, इस तरह से क्रेडिट सिस्टम अब होगा। तो उसमें ये भी प्रोविजन है कि मिनिमम 120 क्रेडिट्स हैं। If a student wants to study some additional courses and earn additional credits, he can do so. वो फ्री है, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप और पढ़ना चाहते हो और कोर्स लेना चाहते हो, लीजिए। और लेकिन वो उसके GPA कैलकुलेट करने में काउंट नहीं होगा। ये थोड़ा सा है, जब GPA कैलकुलेट होगा तो जो एडिशनल कोर्सेज हैं उसमें जो उसके क्रेडिट्स हैं वो उसमें काउंट नहीं किए, लेकिन बट दीज विल बी मेंशन्ड इन देयर सर्टिफिकेट में मेंशन करते हैं कि इतने क्रेडिट इतने एक्स्ट्रा अर्न किए हैं, ये मेंशन किए हैं। इस तरह से ये चीजें आगे चलेगी। और चॉइस बेस्ड ट्रेडिशनल में 3 तरह के कोर्सेज होंगे। 3 तरह के कोर्सेज हैं। वो कोर्सेज जिनको हम कंपलसरी कहते हैं, इलेक्टिव्स, ये तो भी हमारे है ना, हर कोर्स हर प्रोग्राम में BA BSc BCom में सब में कुछ कोर कोर्स होते हैं, कंपलसरी होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं। एक तीसरी चीज और हो गई, एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्सेज। ये चीज भी एप्लीकेशन कोर्सेज हो गए, बिकॉज द पॉलिसी वांट्स टू प्रोफेशनलाइज हायर एजुकेशन, you know, by introducing some skill oriented courses, vocational courses. इसमें ये है, वो जो कोर्सेज हैं 2 तो सबके लिए कंपलसरी हो गए। वन इज एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस का 2 क्रेडिट का कोर्स मींस 2 hours a week, 2 घंटे क्लास होगी पर वीक, फॉर द होल सेमेस्टर। पूरे सेमेस्टर के लिए 2 घंटे क्लास होगी, उसको कहेंगे 2 क्रेडिट कोर्स। सबको पढ़ना पड़ेगा कंपल्सरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया ऑफ स्टडी, चाहे BA हो, BCom हो, BA ऑनर्स हो, कुछ हो। ये एनवायरमेंटल साइंस सबको पढ़ना पड़ेगा। एक और कंपल्सरी कोर्स है जो सबको पढ़ना पड़ेगा, वो है इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कम्युनिकेशन। एक्चुअली कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि सब कुछ करने के बाद भी our students are not good at communication skills. किसी भी लैंग्वेज में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। our students सब लैंग्वेजेस, हिंदी प्लस इंग्लिश सब मिला दिया। तो ये सब है, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम एक कोर्स होगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन और एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कम्युनिकेशन। ये दोनों हैं, इनमें से कोई एक उसको देना होगा। देखिए, एक तो कंपलसरी एनवायरमेंटल कोर्स होगा ही, मैं बता चुका। दूसरा, इनमें से एक लेना भी कंपलसरी। तो और इसके बाद कुछ स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज होंगे, वोकेशनल कोर्सेज होंगे, उनमें से भी किसी कोर्स में 2 लेने होंगे कम से कम, किसी में 4 लेने होंगे कम से कम। ये सब है, पूरी डिटेल उसमें दी हुई है। The idea is that student coming out of a university with a degree should be equipped with some working skill, कुछ skills हो उसके पास, काम करने की skills हो, so that he can find a place in the job market, not necessarily a government job. He can go for his own work also, अपना भी कुछ काम कर सके। इसकी जो तरीके किया जाएगा। एक आइडिया और ऐसा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये कॉन्सेप्ट पॉलिसी में है क्या कि जैसे ही होता था, अभी जो है हर स्टूडेंट को क्रेडिट अर्न करने होंगे 120 क्रेडिट्स। फर्स्ट सेमेस्टर में उसने कितना किया, कितने क्रेडिट अर्न किए, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। सेकंड में कितने किए, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड फॉर दैट पर्पस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स क्रिएट करेगी हर यूनिवर्सिटी। देखिए, हर यूनिवर्सिटी में एक बैंक, हर स्टूडेंट का एक अकाउंट होगा, जैसे बैंक में अकाउंट होता है, उसमें हर स्टूडेंट का एक अकाउंट होगा। जितने क्रेडिट वो अर्न करता जाएगा, सारे के सारे उसके अकाउंट में चढ़ाते चले। एंड इफ
somehow a student has to change the institution. अगर चेंज करना पड़ेगा उसको किसी वजह से दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाएगा, those credit will be transferred automatically. वो ट्रांसफर हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा कुछ। ये नहीं है कुछ नवा पढ़ा तो उसको नहीं मारा, नहीं, क्रेडिट ट्रांसफर का प्रोविजन होगा। और इस पर्पस के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये क्रिएट किया जाएगा, in which every student has to open an account. ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, जैसे एडमिशन होगा मैं आपको अकाउंट स्टॉप करें। And whatever he will study and whatever credits he learn, he will be credited to his account. उसके अकाउंट ब्लॉक में आप चलेंगे। इस तरह का एक सिस्टम गवर्नमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। चलिए साहब, अब हम आते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा आज तक है, रिसर्च। देखिए, रिसर्च को प्रमोट करने का लार्ज स्केल बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, एंड दैट इज थ्रू दिस NEP 2020। इसके थ्रू गवर्नमेंट एक बड़ा प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना चाहती है, रिसर्च को प्रमोट। अच्छा, एक चीज आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश यूनिवर्सिटी रैंकिंग एवरी ईयर, कुछ और ये दिस इज बीइंग पब्लिश्ड सिंस 2004। 2004 से लगातार हर साल कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग पब्लिश करते हैं। यानी कुछ वो लिस्ट आपको ये बताती है which are the best universities in the world irrespective of the country। एक लिस्ट बनती है, इसमें वो पब्लिश करते हैं हर साल। आज आई थिंक यू नो इट, आप जानते हैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग। हमारी गवर्नमेंट ने भी मिनिस्ट्री में ये क्रिएट किया हुआ है, बट दे रैंक यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, तो उसका कोई खास मतलब नहीं। इंटरनेशनल रैंकिंग में, और ये जैसा मैं 2004 से पब्लिश हो रहा है, तो करीब 18 साल हो गया, हर साल पब्लिश होता है। और टॉप 500 में थोड़ा सा डेटा मेरे पास है, over the years nearly 150 to 170 universities of US figure in the top 500 list। उस लिस्ट के जो बेस्ट 500 हैं, बेस्ट 500 यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी लिस्ट में यूएस की 150 और 170 तक यूनिवर्सिटीज रही हैं ओवर द ईयर। सिमिलरली जापान और जर्मनी और आपका फ्रांस, इनका कंट्रीब्यूशन 30 to 40 यूनिवर्सिटीज have been in the top 500। टॉप 500 में, बेस्ट 500 में इनकी भी 30 से 40 तक रही है ओवर द ईयर, पूरा डेटा लिए। इवन चाइना की करीब अभी पिछले साल का रिकॉर्ड मैंने देखा तो 80 यूनिवर्सिटीज फिगर्ड इन द टॉप 500। चीन की 80 यूनिवर्सिटीज बेस्ट 500 की लिस्ट में थी, हमारा कुछ नहीं है, एक गोली बट की, and that too at the very low rank। And in the beginning, when the process started in 2004, 3 institutions figured in the top 500. One was Indian Institute of Science, Bangalore. One was an IIT, and the third was one university. I don't remember the exact name. And thereafter, the number has been decreasing, and their rank is also coming down। जो 2004 में जैसे हम बात कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसका जो रैंक था अगले साल उससे नीचे आया, उसका रैंक इंस्टीट्यूशन वही है, इट वाज अगेन इन द टॉप 500 बट एट द लोअर रैंक देन इट अर्न अर्लियर। पहले जो रैंक था उससे नीचे उतर गया। तो ओवर द ईयर होता क्या गया है, नंबर में भी कम होता गया है हमारी यूनिवर्सिटी, और वैसे भी मतलब रैंक भी घटता गया। That means there is some problem somewhere। थोड़ा सा मैंने स्टडी करने की कोशिश की कि ये रैंकिंग होती कैसे, एंड आई फाउंड दैट
60% weightage in the ranking process is given on quality of research, publications, medals earned. वो जो चीज है ना, कितने नोबेल लॉरेट आपने पैदा किया आपकी यूनिवर्सिटी में, कितने मेडल्स मिले, कितने अवार्ड मिले, कितने जो इंटरनेशनल जर्नल्स, जो बेस्ट जर्नल है उसमें कितने आर्टिकल, कितने पेपर आपके छपे, इन सब चीजों पर 60% वेट है। एंड दिस इज द वीकेस्ट कंपोनेंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। सबसे कमजोर हमारा यही पब्लिकेशन वर्क, रिसर्च की क्वालिटी। रिसर्च किस तरह हो रही है उसके बारे में मैं जानना नहीं चाहता, आप लोग सब जानते हो। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि बहुत ज्यादा पीएचडीज पे जो हमारा ज्यादा है, फैक्ट ये है कि पीएचडी अवार्ड का, एंड इन द ईयर 2010-11 all Indian universities awarded some 10,000 doctoral degrees. 10,000 PhD डिग्रीज अवार्ड की गई 2011 में, और अब का लेटेस्ट डेटा है 44,000। अभी जो लेटेस्ट है, nearly 44,000 PhD are being awarded in our universities annually. तो नंबर तो 4 गुना हो गया, लेकिन यूनिवर्सिटी रैंकिंग घटी। That means there is something wrong with it. And that means we are producing, we are awarding, or we are conducting doctoral research without any genuine element of research. And PhD without research. PhD तो है, लेकिन research उसमें कहीं नहीं। तो that is the fundamental problem. सरकार इस प्रॉब्लम को टैकल करना चाहती है, रिसर्च की क्वालिटी बढ़े, जिससे कि हमारी यूनिवर्सिटी भी इंटरनेशनल रैंकिंग में कहीं आ जाए। और इसके लिए दो चीजें पॉलिसी में है। जैसे एक है नेशनल पॉलिसी प्रपोजल टू प्रमोट क्वालिटी रिसर्च बाय क्रिएटिंग ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। NRF एक नया सिस्टम गवर्नमेंट क्रिएट करना चाहती है। पॉलिसी में दिया हुआ है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन वुड बी क्रिएटेड, coordinate research institutions, monitor the quality of research being conducted in various institutions, and also provide funds to quality research and projects. उसका एक संस्था बने, कहने का मतलब एक संस्था बनाई जा रही है जो रिसर्च की क्वालिटी को मॉनिटर करे, यूनिवर्सिटियों में भी और दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी। हो सकता है, आप देखिए उसका अभी तो मेरी नजर में आया नहीं कि अभी कुछ हुआ है उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम विल कम व्हेन ऑल द डॉक्टोरल रिसर्च टॉपिक्स विल बी अप्रूव्ड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन। ये हो सकता है सारे टॉपिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव करेगी, तभी आगे चलेगी। मे बी दिस इज पॉसिबल। ये एक संस्था जो है क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरी एक चीज और इस प्रपोजल है, the government of India wants to create some research universities. रिसर्च यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी लाना चाहते हैं, और उनका नाम हुआ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, MERU। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, MERUs, MERUs, है ना। इस तरह की यूनिवर्सिटी होगी, उनको रिसर्च यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। And those universities will be given additional funds to promote quality research. And of course, and certainly, it is proposed that additional funds will be given and quality and good faculty will be there. अच्छे जो रिसर्चर हैं उनको उसमें रिक्रूट किया जाएगा। तो ये एक प्रोविजन है, इस तरह की ये होगा। अच्छा, ये गवर्नमेंट कर क्यों रही है? फैक्ट ये है कि
This idea has been borrowed from USA. USA ने क्या किया है कि USA has also created 8 universities, 8 research universities, and they call them Ivy League universities. IVY, किस तरह Ivy लिखते हो? Ivy League University. उनका नाम दिया है कुछ simply named to separate them from other. कहने का मतलब ये है, US government has identified 8 universities which capable of conducting good research, quality research, और उनको additional fund वो देंगे, और सारी all of them figure in the top 18 every year. इनको इतनी अच्छी है कि जो आपकी रैंकिंग है उसमें बेस्ट 18 में वो आता है आउट ऑफ द आउट. So that means they are good university. In the same way, Chinese government has also created a similar system. China ने क्या? China ने क्या किया? China has also as a project under which they have identified some 40 universities. और पहले तो the proposal was to identify 9 universities only as research university, and they called it C9. को पहचान के लिए नाम रखा C9. mean 9 best universities for conducting quality research. और उसको उन्होंने कहा कि हम इसको एडिशनल फंड देंगे. चाइना ने वो आइडिया यूएसए से लिया, और अब चाइना के पास करीब 40 यूनिवर्सिटी हैं which according to them were research universities and which conduct quality research there. इस तरह का है बच्चों. उसकी लाइन पर हम लोग इंडिया में भी जाना चाहते हैं. In this NEP 2020, the government of India has made some proposals उस तरह का कुछ है. तो रिसर्च को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, और रिसर्च की क्वालिटी जैसा कि मैंने बताया, we are giving more emphasis on PhD पे ज़्यादा जोर है. और जब से PhD को जॉब से जोड़ दिया है, अब तो शायद नहीं है कंपल्सरी, रिसेंटली उसको अलग कर दिया है. अभी तो शायद NET net examination is the only compulsory thing for it. There was a time when PhD was compulsory for joining it as a teacher in the university. अब क्या होता था, इतनी लार्ज स्केल PhD, बहुत बड़े पैमाने पर PhD जो है वो होती गई. तो ये चीज हमारे यहाँ, एंड देन थोड़ा ये हुआ कि भाई हाँ पब्लिकेशन होना चाहिए. पब्लिकेशन में क्या हुआ ये भी आप जानते हैं. हर गली में हर नुक्कड़ पर एक जर्नल निकलता है हमारे यहाँ आजकल. ये बहुत वैसा इशू है, ये आप लोग सब जानते हो. You submit a paper in the evening, pay the fees and get it published in the next morning. ये सब हो रहा है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को जॉब से जोड़ते हो ना, उसकी क्वालिटी चली जाएगी डाउन. So this is happening. And you know, chief editors of those journals have their publication house on their back in the laptop. पीछे बांधे हुए लैपटॉप में सारा पब्लिकेशन हाउस है. And this is happening. ये सब हो रहा है. तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसको जॉब से जोड़ा. जॉब से मत जोड़िए, रिसर्च को जॉब से मत जोड़िए. मैं मानता हूँ रिसर्च इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. हर एक का वो रिसर्च नहीं है. इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. इट रिक्वायर्स ए सुपीरियर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, हाई लेवल ऑफ aptitude for research and motivation. लार्ज स्केल बड़े फंड इतना बांटा जा रहा है स्कॉलरशिप के नाम पर. हो क्या रहा है? देखिए हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं, क्योंकि जितना स्कॉलरशिप मिल रहा है JRF में अब हमारे यहाँ अच्छा है, लेकिन स्कॉलरशिप तो रिसर्च को देना चाहिए, होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं. लेकिन जितना स्कॉलरशिप मिलता है उतना की मार्केट में जॉब नहीं मिलती है. If a student wants to lead scholarship and go for job,
उसको उतनी जॉब नहीं मिलेगी। What students are doing is that even if he has completed his PhD work in 3 years or even less, he would not submit his thesis, because if he does, his scholarship will be discontinued. ये हमने देखा होते हुए, मैंने 1.5 साल तक स्टूडेंट PhD थीसिस को लिए बैठा है, सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि उसको 4.5 साल तक अपना स्कॉलरशिप लेना है, इसलिए। तो दिस इज नॉट द वे रिसर्च इज कंडक्टेड। ये रिसर्च करने का तरीका नहीं। We should award scholarship for research. We should not promote, joining research for scholarship. इसको प्रमोट ना करें कि कोई इसलिए रिसर्च में आया क्योंकि स्कॉलरशिप देता, ये नहीं, ये should not promote। और हमने उनके देखा कि सिर्फ स्कॉलरशिप मिलना इसलिए रिसर्च करें, ये नहीं, ये दोनों को इसके बारे में सोचना चाहिए। नए सिरे से स्कॉलरशिप का अमाउंट तो बढ़ाना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ जितना मिलता है तो और बढ़ा, but award scholarship only to genuinely interested students, those who have superior intellectual caliber and those who are interested in research and have high level of motivation for research। तो ये चीज को धीरे-धीरे गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये हमारे एक्चुअली बोल रहा है, इसलिए मैंने भी कहा तो जो ट्रुथ है हम तो सच को स्वीकार नहीं करना चाहते, हम हिंदुस्तानियों की ये प्रॉब्लम है। It's a different issue। अब एक चीज और आती है, National Education Policy also proposes to transform the university governance system। सबसे ऊपर होता है मिनिस्ट्री, तो पॉलिसी में कहा है कि मिनिस्ट्री का नाम अब MHRD नहीं होगा, इट विल बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये अब कल भी बताया था ये बात, तो वो हो गया ऑलरेडी डन, उसका नाम बदल दिया गवर्नमेंट ने, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसका नाम कर दिया गया। अब एक चीज है, उसके बाद है यूनिवर्सिटी ग्रांट। देखिए यूजीसी के पास काम बहुत हो गया, बहुत कम बढ़ गया।